Hello students, good morning to all of you. Welcome to our online session. Today I will begin with our history part. It is very important part of social science. Various important questions come in the examination from this part. Indian history is divided into three parts, that is ancient history, medieval history and modern history. In this chapter we will be discussing about one of the most historically motivating and important event in India of independence India, that is India's modern history. It's a revolt of 1857. So let's begin the first chapter of history, means chapter 7 of book, the first freedom struggle of 1857. Chapter 7, the first freedom struggle of 1857. In this chapter, we shall learn about these topics. The first topic is the background of first struggle for freedom. The second topic is the causes of struggle for freedom. The third topic is the major events of the freedom struggle. The fourth topic is the reasons for the failures of the freedom struggle. The fifth topic is the importance of first struggle for freedom and its features. And the sixth and the last most topic is the freedom struggle, the freedom fighters of 1857. So let's start. The struggle for freedom of 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in the history of India. जो 1857 स्ट्रगल है ये एक ग्लोरियस और रिवॉल्यूशनरी इवेंट है इंडिया की हिस्ट्री में. इट इज अ ग्लोरियस एंड रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. मींस जो 1857 स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए ये इंडिया की हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशनरी और ग्लोरियस इवेंट है. ग्लोरियस मींस क्या होता है? यशस्वी. मींस हैविंग और डिजर्विंग फेम और सक्सेस. एंड रिवॉल्यूशनरी मींस क्या होता है? क्रांतिकारी. Means he connected with our supporting political revolution. The revolution of 1857 was the first armed revolution which was so widespread and powerful that it shook the foundation of British Empire. It means कि जो 1857 revolution है ऐसा revolution है जिसमें मतलब first armed revolution था कि जिसमें आर्म्स का यूज किया गया था. इट वॉज अ फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन जो बहुत व्यापक स्तर पर फैला. बहुत व्यापक स्तर पर फैलने के साथ साथ ये बहुत पावरफुल भी था जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी. By keeping the national problems on center stage, the revolution of 1857 challenged the existence of East India Company, EIC. Whenever I will talk about the EIC, it is East India Company. तो अगर नेशनल प्रॉब्लम्स को अगर हम सेंटर में रख के देखते हैं तो जो रिवॉल्यूशन था 1857 का इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया. ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया इसने. द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज अ नेशन वाइड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल फॉर पुटिंग अप एन एंड टू द ब्रिटिश रूल. 1857 जो रिवॉल्यूशन था ये नेशन वाइड था, पूरे देश में फैला. ये हर जगह जगह लोग इसमें इकट्ठे हुए, यूनाइटेड हुए और ये ऑर्गेनाइज स्ट्रगल था. मतलब हर चीज को उसमें ऑर्गेनाइज करके रखा गया था. सो इट वाज द ऑर्गेनाइज एंड द यूनाइटेड स्ट्रगल जिसने ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए लड़ा गया था. Although this struggle failed in its mission, its memories and inspiration are still alive in the hearts of common men. हालांकि जो मिशन था ये फेल हो गया, ये जो स्ट्रगल था ये फेल हो गया अपने मिशन में, लेकिन इसकी जो मेमोरीज है या इसका जो इंस्पिरेशन है ये लोगों के दिल में अभी भी जिंदा है. Among the Indian people an awakening took place followed by the freedom struggle. और इस फ्रीडम स्ट्रगल के बाद क्या हुआ? लोगों के अंदर लोग जागरूक हो गए. जो इंडियन पीपल थे उनके अंदर जागरूक हुए वो, और उनके लिए देश की भावना जागृत हुई कि देश को आजाद कराया जा सकता है और हम इन ब्रिटिशर्स से फ्री हो सकते हैं. Okay, the Indian people realized that there was a difference of interest between them and British administration, and Britishers would never allow Indians to grow in their own interests. और लोगों ने, इंडियन पीपल ने, भारत के लोगों ने ऐसा रियलाइज किया कि हम लोगों के आपस में क्या डिफरेंसेस है, हम लोगों के इंटरेस्ट में क्या है डिफरेंस है, हम लोगों के हित अलग अलग हैं, हम लोगों के वेलबींग्स अलग अलग हैं. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के चाहे इंडियंस के, हम लोगों के रास्ते क्या है अलग अलग हैं. और उन्होंने बोला कि ये ब्रिटिशर्स हमको कभी भी अपने खुद के इंटरेस्ट को ग्रो नहीं करने देंगे, हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे. द इंडियंस ऑल्सो रियलाइज दैट
until the themselves do not wake up and work with the feelings of independence, equality, brotherhood, self-respect, unity and nation pride, the country will continue to remain under British rule. और लोगों को ऐसा, भारत के लोगों को ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर वो खुद से जब तक जागते नहीं है या आपस में मिलकर काम नहीं करते हैं, तब तक ना उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगी और वो ब्रिटिश रूल के अंडर में ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोगों को जागना होगा और हम लोगों के अंदर कैसी फीलिंग होनी चाहिए, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपस में यूनाइट होंगे हम लोग और देश के लिए इकट्ठा होकर अपने आप को ब्रिटिश के रूल से आजाद कराएंगे। दिस रियलाइजेशन अराउज स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक फीलिंग अमंग इंडियन, और ये रियलाइजेशन जो था इंडियंस के फीलिंग में देशभक्ति की भावना को उसने जागरूक किया और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागरूक हुई और उन्होंने सोचा कि हम अपने देश को आजाद करा कर रहेंगे। सो इट वाज द फर्स्ट आर्म्ड स्ट्रगल ऑफ द कंट्री। इससे पहले भी काफी ऐसे स्ट्रगल हुए लेकिन ऐसा जो स्ट्रगल था वो कभी नहीं हुआ, इसलिए फर्स्ट स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, जहां से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागरूक होती है और हम अपने देश के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए हम लोग यूनाइट होते हैं। इसके बाद हर इंसान जो है, हर चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी कैसा भी हो, लेकिन सब लोग क्या होते हैं, इस स्ट्रगल के बाद यूनाइट होना स्टार्ट होते हैं। उनको पता चला कि हम लोगों की कमजोरी क्या है, अगर हम लोग यूनाइट हो जाए तो हम ब्रिटिशर्स के रूल को खत्म कर सकते हैं, अपनी इंडिया से वापस भेज सकते हैं और अपनी कंट्री को आजाद करा सकते हैं इनसे। सो इट वॉज द very important revolution which was held in the country. Now the 7.1, the background of the struggle of 1857, from the arrival of the Europeans in India to struggle of independence of 1857. Now we will read the topic, the background of the struggle of 1857. 1857 struggle का background हम read करेंगे। कहाँ से? From the arrival of Europeans in the India to struggle of independence of 1857. यूरोपियन के अराइवल से 1857 इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल तक। So in the year 1857, common men in India, soldiers, the rulers of small states, landlords participated in the struggle against the foreign rule with great valor, and that is why this struggle is known as the first struggle for freedom. The event of 1857 were the first spark which kindled the freedom struggle. It means कि 1857 जो struggle हुआ था, इसमें चाहे भारत का कॉमन मैन हो, इंडिया कॉमन मैन, सोल्जर्स हो, स्मॉल स्टेट्स के रूलर्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था फॉरेन रूल के अगेंस्ट में। ऑल द पर्सन्स वर यूनाइटेड इन दिस स्ट्रगल, मतलब हर कॉमन मैन ने, इंडिया के हर कॉमन मैन ने, चाहे वो सोल्जर्स हो, चाहे वो रूलर्स हो स्मॉल स्टेट्स के, चाहे लैंडलॉर्ड्स हो, सबने एक होकर इसमें फॉरेन रूल के अगेंस्ट में पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल साहस के साथ। इट मीन्स ग्रेट वैलर मीन्स पराक्रम, शौर्य के साथ, विद ग्रेट करेज एंड साहस, लैक ऑफ फियर, स्पेशली इन वॉर होता है वैलर मीन्स। ओके, तो सबने बिल्कुल साहस के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए से फ्रीडम के लिए इंडिया का फर्स्ट स्ट्रगल कहा जाता है। जो 1857 का जो इवेंट था, ये पहली चिंगारी जी जो आजादी के लिए जलाई गई थी। ओके, द सोल्जर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल. People from all walks of life participated openly and strengthened it. Lakhs of people sacrificed their lives in this struggle. जो सोल्जर्स हैं उनका योगदान जो है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है इस स्ट्रगल में सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, उन्होंने सबसे मेजर रोल जो है वो प्ले किया है इस स्ट्रगल में। तो अगर हम देखें तो हर तबके के लोग, मीन्स ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, मतलब हर जगह से, चाहे वो सोल्जर्स हो, स्मॉल स्टेट्स के लोग, रूलर्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो, सोल्जर्स हो, सब ने इसमें ओपनली पार्टिसिपेट किया और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और काफी सारे लोग थे जिन्होंने इस स्ट्रगल के लिए, अपने देश के लिए अपनी लाइफ का sacrifice कर दिया। So that's why this is the very important struggle for 1857. Now from the later part of 15th century Europeans had started coming to India for the purpose of trade. तो 15th century के अगर हम लेटर पार्ट में देखते हैं तो यूरोपियंस ने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया था ट्रेड के पर्पस से। तो मैं आपको इसमें एक सीक्वेंस बता देता हूँ, जो हमारा जो अराइवल होता है बाहर से लोगों का, वो किस सीक्वेंस में होता है। जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया में किस सीक्वेंस में आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं, ये हमारा सीक्वेंस जो है, जैसे हम बोलते हैं पी डी ई एफ, ये पूरा एक सीक्वेंस चलता है, पी डी ई एफ मीन्स पोर्चुगलीज, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी।
PDEF, ये सीक्वेंस आप याद कर सकते हो। आपको इससे ये सीक्वेंस से आप रिमेंबर कर पाओगे कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले पोर्चुगलीज आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसीस आते हैं। तो इस तरह से होता है PDEF। ये सीक्वेंस आप ट्रिक अपने माइंड में सेट रख सकते हो। तो इस तरह से इंडिया में यूरोपियंस का अराइवल होता है। तो मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ जो बुक में नहीं है। तो क्या होता है, 1498 में पुर्तगाली सेलर ट्रेडर था। वो सबसे पहले 1498 कब, 1498 1498 1498 में वो सबसे पहले भारत के लिए जो सी रूट है, जिसने सी रूट की खोज की थी। मतलब वो क्या था, किसी भी वहां पर जो टर्कीज जो अटैक हो रहे थे उनसे मुक्त था, बिल्कुल रिलीज था वो। तो एक पुर्तगाली सेलर होता है वॉस्को डिगामा, कैप ऑफ गुड्स हॉक्स के रास्ते होते हुए भारत में समुद्री मार्ग उसने खोजा। उसने सी रूट को फाइंड किया और 27 मई 1498 को वो कालीकट पहुंचा, जिसे आज हम कलकत्ता बोलते हैं। 1498 में वो कालीकट पहुंचा। ओके, तो सबसे पहले पोर्चुगलिस आते हैं, पोर्चुगलिस सेलर आते हैं वॉस्को डिगामा सी रूट्स के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ से जो है इंडिया में यूरोपियंस का जो अराइवल है वो स्टार्ट होता है 1498, ये डेट आप याद रखना। इसके बाद डचेस आते हैं, अंग्रेज आते हैं सबसे ज्यादा, ईस्ट इंडिया कंपनी मींस। उसके बाद कौन आते हैं आपके, फ्रांसीसीस। तो लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो रूल किया है वो किसने किया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ओके, किसने रूल किया सबसे ज्यादा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब देखिए, यूरोपियन हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। तो यूरोपियंस ने भारत में आना स्टार्ट कर दिया था लेटर 15th सेंचुरी में। ठीक है, किस पर्पस से, ट्रेड के पर्पस से। द कंपनी विच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड सेंटर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वर मेनली फ्रॉम पोर्चुगल, हॉलैंड, ये आपको दिया हुआ है इसमें बुक में, पोर्चुगल, हॉलैंड। इसके अलावा अगर हम देखें इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो जो कंपनीज थी जिन्होंने अपना ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश किया इंडिया में, वो कहाँ से आए थे, पोर्चुगल से आए थे, हॉलैंड डचेस मींस इंग्लैंड, अंग्रेज, फ्रांसीसिस मींस फ्रांस। तो ये चार जगहों से मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया वो इंडिया में अपना ट्रेड करने आए थे। दीज ट्रेड सेंटर वर मेनली सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज, दे वर कॉल्ड फैक्ट्रीज। ये जो ट्रेड सेंटर से वो, ये लोग कहाँ से आए थे, समुद्र के रास्ते से आए थे, कोस्टल एरिया के थ्रू आए थे, कोस्टल एरिया के रास्ते से आए थे। और जहाँ जो स्ट्रेट सेंटर्स है मींस, जो इन्होंने अपने मेनली स्ट्रेट सेंटर्स कहाँ पे स्टैब्लिश किए, कोस्टल एरिया के पास। तो इसलिए इन्हें क्या बोला गया, फैक्ट्रीज बोला गया था। ओके, दे वर कॉल्ड फैक्ट्रीज। इट मींस कि ये जो ट्रेड सेंटर्स थे मेनली कहाँ पर स्टैब्लिश थे, कोस्टल एरियाज पर स्टैब्लिश थे। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता था, फैक्ट्रीज बोला जाता था। ओके, दीज फैक्ट्रीज वर fortified in order to protect from rivals companies attack. These companies used to buy commodities from India where which were either scarce or not available in Europe, and used to export them to earn higher profit. These reasons caused a mutual rift between the companies. अब क्या हुआ, इन फैक्ट्रीज को फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड मीन्स क्या होता है, मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक। मीन्स किलाबंदी करना होता है हिंदी में। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमले का सामना करने के लिए किसी स्थान को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, फोर्टिफाइड करना। ओके, तो इन फैक्ट्रीज को फोर्टिफाइड किया जाता था ताकि राइवल कंपनीज अटैक से इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। राइवल कौन होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर क्या करेंगे, हमसे वो करेंगे, तो हम उनके कंपनीज के अटैक से अपने आप को फोर्टिफाइड कर सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें फोर्टिफाइड किया जाता था। ये कंपनी क्या करती थी, इंडिया से कमोडिटीज, कमोडिटीज मीन्स क्या होता है, थिंग्स, वस्तुएं खरीदती थी। मतलब यूरोप में जो किसी चीज की कमी होती थी या कोई चीज अगर अवेलेबल नहीं होती थी तो ऐसी चीजों को इंडिया से लेकर जाया करते थे लोग। इंडिया से कम, बिल्कुल न के बराबर टैक्स पे लेते थे, टैक्स देते ही नहीं थे, मतलब ये समझो। और इंडिया से लेकर वो कहाँ बेचते थे, यूरोप में बेचते थे। इससे उनको क्या होता था, हाई प्रॉफिट होता था, है ना। तो इससे क्या हुआ, कंपनीज के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हुई, एक गहरी खाई, आपस में क्या हुआ, गहरी खाई क्रिएट हुई उनके बीच में, कंपनीज के बीच में दरार आ गई। ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, EIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1600। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1600 में होता है।
To earn more and more profit through trade was the main aim of the company. In order to achieve its objective, the company did not hesitate to even use unscrupulous method. It means कि कंपनी का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन मकसद था, पर्पस था, वो क्या था? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी गलत तरीकों का यूज करने से भी हेजिटेट नहीं होती थी। Surat was the first place to be developed as a trade center by East India Company. और सूरत जो था वो उनका फर्स्ट ट्रेड सेंटर था, उनके द्वारा डेवलप किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया ये फर्स्ट ट्रेड सेंटर था। ओके, following which the company established its main trade centers in Bharuch, Ahmedabad, Agra, Masulipatam also, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल एंड मुंबई एक्सेट्रा। इसके बाद उनके और भी ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश्ड हुए, जिसमें भरूच हो गया, अहमदाबाद हो गया, इसके अलावा आगरा, मसूलीपट्टनम हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, बंगाल हो गया और मुंबई। तो ये सारे ट्रेड सेंटर उनके स्टैब्लिश हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि विच वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इट वाज द सूरत। सूरत वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर बाय ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं जैसे आपको इंपॉर्टेंट लाइंस चैप्टर में मार्क कराते जा रहा हूँ, तो आप मार्क करते चलिए और उन्हें ध्यान से समझते चलिए। प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पीडीएफ का आपको सीक्वेंस मैंने सिखाया है कि 1498 में एक पोर्चुगलीज सेलर था जो सी रूट के थ्रू जो है इंडिया में एंटर करता है। ओके, और वास्को डिगामा आता है सबसे पहले। उसके बाद कैप्टन जनरल अल्फांसो डी अल्बुक्रेक जो 1510 में गोवा पर कब्जा कर लेते हैं। ये बुक में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद डच आते हैं 1598 में। सबसे पहले डच का एक फ्लीट आता है, जाजी बेड़ा जो होता है वो भारत आता है, और भारत में उसने काफी ही जल्दी उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है डचेस का। ठीक है, उनका फर्स्ट जो है कारखाना फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश होती है। ठीक है, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 1600 में होता है। उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, और उनसे अनुमति प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया आती है। और सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे कैप्टन हॉकिंस, जो जहांगीर के पैलेस में आते हैं और इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन लेते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिलती है। इसके बाद 1613 में सर थॉमस रॉ जहांगीर के पैलेस में आते हैं और भारत के साथ ट्रेड करने की अनुमति प्राप्त करने में और सूरत में अपनी कोठी स्थापित करने में वो सफल हो जाते हैं। इट मींस कि जो सर थॉमस रॉय थे वो जहांगीर के पैलेस में आते हैं और उन्हें इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है, और सबसे पहले वो सूरत में अपनी कोठी जो स्टैब्लिश कर लेते हैं। इसके बाद अलग अलग जगह पे वो अपने ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश करते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी began aspiring for the political foothold in India। अब क्या होता है, जैसे जैसे 17 सेंचुरी एंड होती है, 17 सेंचुरी के एंड में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, ट्रेड सेंटर तो स्टैब्लिश करते जा ही रहे थे वो लोग, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी उसमें भी अपने आप को इंक्लूड करते ही जा रहे थे। मतलब पॉलिटिकल कंडीशंस पर भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते जा रहे थे, उनमें भी अपना उसमें भी अपनी आकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, पैर उनका पॉलिटिकल कंडीशंस में भी बढ़ता जा रहा था, सो दैट इट वुड फैसिलिटेट इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज, ताकि वो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज को फैसिलिटेट कर सके, उसे इजी बना सके। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707 मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। अब 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपस में उनमें झगड़ा हो जाता है, औरंगजेब की जो सन होते हैं उनमें आपस में झगड़ा होना स्टार्ट होता है, इससे मुगल एम्पायर क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। द होल नेशन डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट। जो पूरा नेशन होता है वो छोटे छोटे स्मॉलर स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। मैनी ऑफ द स्टेट्स बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट। काफी सारे जो स्टेट होते हैं वो क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रह जाते हैं। दीज सर्कमस्टांसेस लेड टू एस्टैब्लिश कंपनीज फुटहोल्ड इन द कंट्री। और इन सर्कमस्टांसेस से क्या होता है, कंपनी देश में अपने पैर पसारना स्थापित करती है, अपने अपने
जो अपना इंटरफेरेंस है उनका, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है. कंपनी स्टार्टेड interfering in the political matters of the state and begin overpowering the rival companies and the local state. और इससे क्या होता है, कंपनी धीरे धीरे क्या करती है, स्टार्ट करती है पॉलिटिकल मैटर्स में अपना इंटरफेयर करना, और धीरे धीरे उनकी पावर्स जो है, चाहे वो राइवल कंपनीज हो, चाहे वो लोकल स्टेट्स हो, सब जगह उनकी पावर्स क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है. तो उनका जो कह सकते हैं एक बार इन्फ्लुएंस वो देश में स्टेब्लिश होना और ज्यादा पावर उनकी बढ़ना स्टार्ट यहीं से होती है. ओके.